اندر سے نہیں نکال سکتا. میں آپ کو یہ بتا دوں بلے کا نشان پی ٹی آئی نہیں. جس طرح جیسے ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سنی ہے باقی سب کافر ہیں، دیوبندی کافر ہیں، اہل حدیث کافر ہیں، اہل حدیث یہ کہے سب نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب مسلمان ہیں، ہم بھی عمران خان کے ماننے والے ہیں اور ہم پی ٹی آئی ہیں. اور دیکھ لیں بڑے والا کے تمام منتخب کونسلر جو ہیں پی ٹی آئی کے بگڑے گئے، وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی اصل یہ ہے. اب میں جناب ہمارے جن کی ہم حمایت کا نام کیا عبدالحمید بھٹی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب عبدالحمید بھٹی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پنجاب پریس کلب، سندھی پریس کلب، پورے والا پریس کلب تمام دوستان کو شامل کہنا ہے اور میں دسنا چاہنا ہے کہ ساڈا پریس نال بڑا لگ رہا ہے. سن 1990 میں اسی پاکستان اخبار پڑھیا سی اور پاکستان اخبار میں اتنے آج کل نامور صحافی میں فیاض ہے، احمد کی جمیل اندر عباس وغیرہ، یہ سارے اخبار میں رہ چکے ہیں اور ان سب صحافیان پاکستان میں پرنٹ میڈیا ہوتا سی گا، الیکٹرانک میڈیا میں ہے ہی نہیں سی. اس وقت کوئی بھی صحافی ایڈیٹر دے ہوتے تک نہیں سی پہنچ سکتا. اگر پاکستان کے ایڈیٹر بنائے گئے تو صرف اور صرف پاکستان اخبار کی وجہ تو عام صحافی ایڈیٹر دے ہوتے تک پہنچ سکے، ورنہ جتنے بات سی اخبار نے صرف کوئی ایڈیٹر بن سکتا سی، اور کوئی صحافی ایڈیٹر دے ہوتے تک نہیں جا سکتا. باقی عمران خان صاحب عمران خان صاحب میرے فادر جی نے لاہور کے شوکت خان ہاسپٹل کو زمیندار ہوٹل جڑا ریلوے اسٹیشن لاہور کے نال ہے وہ ڈونیٹ کیتا ہے اور اس میں اس کی مالیت جو ہے کم از کم 40-50 کروڑ کے قریب آئے گی اس پارٹی میں. باقی جتنے دوست سارے نال شامل ہوئے ہیں یا سپورٹ کا اعلان کیتا ہے، میرا چھوٹا بھائی محمد اشرف بھٹی سن 1996-7 کا جڑا الیکشن ہوا سی وہ عمران خان صاحب کے نام نیچے ایم پی کے کینڈیڈیٹ انہوں نے الیکشن لڑیا سی اور اس کے بعد 97-99 کے وہ امریکہ شفٹ ہو گئے. امریکہ شفٹ ہو ہلے بھی اتنے پی ٹی آئی کے بڑے سرکار کارکن نے اور اسی طرح میں سب کے بھائیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ساری حمایت کا اعلان کیا اور مصطفیٰ بھٹی صاحب کا باقی صاحب جتنے بھی ممبر سب کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ساری سپورٹ کا اعلان کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اسی بھی اللہ تعالیٰ سب کامیابی ہے یہاں بھائیوں کو سارے کو نال لے کے چلیں گے اور اصل پی ٹی آئی انشاءاللہ تعالیٰ سے نہ بن جائے. عبدالحمید بھٹی صاحب امیدوار بھائی اسمبلی پی پی 230، انہوں نے آپ کو بتایا کہ اپنا تعلق عمران خان صاحب سے بتایا کہ ہمارا ایک ہوٹل ہے لاہور کے اندر زمیندارا ہوٹل، اس کی جتنی بھی آمدن ہے ساری شوکت خان کو جاتی ہے. ان کے چھوٹے بھائی جب خان صاحب نے 1997 میں ویسے ڈونیٹ کر دیا، سر نے بتایا کہ وہ ہوٹل جو ہے وہ سارا ڈونیٹ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ جب خان صاحب بالکل نئے کوئی بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا تو ان کے چھوٹے بھائی سے لاہور سے جب ایم این اے کا الیکشن لڑا تو ان کے چھوٹے بھائی محمد اشرف بھٹی پی پی 122 حلقہ تھا، عمران خان صاحب نیچے ایم پی اے تھے اور ان کے بھائی کے مقابلے میں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایڈیٹ تھے. اس وقت سے یہ خان صاحب کے ساتھ ہیں. یہ تو جتنے اس وقت خاصہ نظام بھی نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھا. تو انہوں نے بتایا اب میں گزارش کروں گا پورے والا کی آپ جو شخصیت ہیں اور پورے انشاءاللہ ڈسٹرکٹ کے اندر ان کا نام ہے، پورے پاکستان میں ان کا نام ہے، سیاسی حوالے سے یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے ہے. میں
دعوت دیتا ہوں کہ وزیر جٹ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات صاحب نے آج یہ جو پریس کانفرنس ہے میں وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، انہوں نے یہ پریس کانفرنس بلائی ہے جس میں وہ اس الیکشن میں اپنے موقف بتائیں گے اور وہ جن کے ساتھ جن کا اپنی حمایت کا اعلان بھی کریں گے۔ تو اس حوالے سے آج کا یہ پروگرام جو ترتیب دیا گیا ہے، تو میں سب سے پہلے غلام مصطفیٰ بھٹی صاحب جو میونسپل کمیٹی بھولے والا میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، میں سب سے پہلے انہیں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا جو ہے موقف کا اظہار کریں۔ جناب غلام مصطفیٰ بھٹی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستان، میں غلام مصطفیٰ بھٹی، اپوزیشن لیڈر، میونسپل کمیٹی بلدیہ بھولے والا، آنے والے تمام دوستوں کو، پریس کے دوستوں کو، اہل علاقہ کو، وزیر جج صاحب کو، میرے تمام کونسلرز، حاجی امین بھٹی صاحب کو دل کی اتنا گہرائی میں خطرات کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ تحصیل بھولے والا کے میٹروں کا غیر منصفانہ فیصلہ اور رات 2 بجے خفیہ مقام پر بند کمرے میں کیا گیا۔ اس سلسلے میں آج ہم آپ دوستوں کے روبرو احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے پیش ہوئے ہیں۔ میں بتاتا چلوں کہ جنوبی پنجاب کے نام نہاد صدر اسحاق خاقانی جس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو خود کو وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ کہتا ہے، اس نے بغیر کسی مشاورت کے یہ فیصلہ کیا، جن کو ٹکٹیں دی گئیں وہ غیر منصفانہ تھیں۔ انہوں نے زمینی حقائق کو جانتے ہوئے ووٹر کی دل آزاری کی اور پی ٹی آئی کے تقریباً 20 الیکٹڈ نان الیکٹڈ کونسلرز نمائندے جنہوں نے حالیہ 2005 کا بلدیاتی الیکشن لڑا، جو تقریباً 1 لاکھ ووٹرز کی نمائندگی کر رہے ہیں، اس سلسلے میں کسی سے مشاورت نہیں کی گئی۔ مجھے پارٹی کی طرف سے حیثیت ایم پی اے بھی کہا گیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے اپنے حلقہ میں 2000 ممبر سازی کارڈ بنوانے ہیں، اور میں نے تقریباً بھولے والا شہر میں 32 کے قریب یہ کیمپ لگائے اور جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ ممبر سازی کی، جو تقریباً 6000 کے قریب تھی۔ دن رات پارٹی کے لیے توجہ کی اور 4 سال تک پارٹی کا جھنڈا لے کر گلیوں چراہوں اور یہ تمام چکوک میں گیا۔ میں صرف پی ٹی آئی کے لیے سے جاتا تھا اور میرا خاقانی سے بھی رابطہ رہا، لیکن جب ٹکٹوں کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو انہوں نے بالکل اگنور کر دیا۔ پی ٹی آئی کے جن ممبرس کو ٹکٹ جاری کیے گئے، میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، میں تو عمران خان صاحب کو اس ویژن کے ساتھ ہوں جنہوں نے کہا تھا اس دفعہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ جیتنے والوں لوگوں کو ہی دیے جائیں گے، جبکہ ہمارے حلقہ میں سب دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہوا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ سخت ناانصافی ہوئی، بلکہ اسحاق خاقانی نے اپنا فیصلہ جبراً تحصیل بھولے والا کے ووٹرز نے تھوپ دیا۔ میں نے بلدیاتی الیکشن میں ہم تمام دوستوں کے کاموں سے 5 کونسلر الیکٹ ہوئے تھے۔ ہمارے دوستوں کی محنت سے ہم نے کوشش کی اور ہم 5 سے
3 लोगों को जुर्माने में कामयाब हो गए, जिसमें हमारे खुदार तकरीबन 9 हो गई थी। एक तो पहले हमारे साथ नहीं था, वो मुस्लिम लीग के साथ जा मिला था। हमने इन्हीं लोगों के साथ मिलकर पार्टी के मंशूर को आगे बढ़ाया और दिन रात कोशिश की। मैंने इसहाक खानी से रिक्वेस्ट की थी कि आप बुधवार तशरीफ लाएं, हम तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म में जमा हैं और आप जिस बंदे को टिकट देंगे हम सब उसके साथ होंगे, लेकिन आप लोग हमसे मुशावरा ज़रूर करें। और हमसे ये बात हुई थी कि टिकटों की तस्कीन के मतलब आप लोगों से मुशावरत की गई थी, लेकिन इस खानवानी ने रात को बंद कमरे मीटिंग की। एक कैंडिडेट है मछुआर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके साथ मीटिंग हुई, वो इंट्रोड्यूस करता रहा और उससे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कैसे लेकर टिकट जारी करवाया गया, जो कि सरासर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्गों से ज्यादती है। मेरी अमला से अपील है कि आप इसकी गैर मुनसिफाना तहकीकात करें और इस खाकवानी को, जिसको आपने या वो खुद नाम लिहाज अपने आप को CM का कैंडिडेट कहता है, जो कि अपनी इससे अहल नहीं है कि उसको CM का चपरासी में रखा जाए, जिसने हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनूबी पंजाब में जिस तरह तेजी से ये उड़ी थी, उसी तरह इन तमाम लोग वर्कर नज़ाती जो हैं इससे नाराज हैं, इसके गलत फैसले हैं। और आज मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट भी है कि जहाँ मौजूद हैं, कि हमने ये फैसला किया है अपने दोस्तों की मुशावरत से, जिसमें मेरे तमाम काउंसिल शामिल हैं, शायद 1 या 2 बाहर हैं, कि हमने मज़ीद जज लोग को सपोर्ट करना है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ये कामयाब होंगे और ये कामयाब होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे, जो कि खुद भी कहते हैं कि मैं खान को मानता हूँ और हम आज तस्लीम करने के बाद कि ये बंदा बिल्कुल ठीक कहता है। मेरी सियासी मुखालफत थी, मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मैं इतना मुखालफ, ये मेरा मुखालफ है, लेकिन मैंने देखा कि ये शख्स मुनाफिक नहीं है, मुखालफ होना कोई बात नहीं, लेकिन मैं जिन लोगों में रहा, जिन लोगों से मैं तल्लक रहा, मैंने उनको देखा कि वो सफ़ेद लिबासों में अंदर से काले हैं, मुनाफिकत उनमें भरी पड़ी है। उस वक्त ये कहाँ थे जब मेरे पास PTI का टिकट था? तो क्यों नहीं PTI के वोटर मेरे साथ चला? क्यों नहीं उनकी बरादरी मेरे साथ चली? या जब अपने हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं PTI के वोटर को सपोर्ट क्यों नहीं किया गया? जब अपने गांव के इलेक्शन होते हैं PTI कैंडिडेट क्यों नहीं दिया गया? ये तमाम मेरे सवाल हैं, पार्टी से भी, इन लोगों से भी। मेरे इससे कोई इख्तिलाफ नहीं चाहती, मैं सिर्फ PTI के साथ था, PTI के साथ हूँ और मेरा जीना मरना इंशाअल्लाह PTI के साथ होगा। आखिर में मैं तमाम दोस्तों का, ख़ुसूसी तौर पर प्रेस के लोगों का, जिनका साथ हमेशा हमारे साथ रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले वक्त में भी ये तमाम दोस्त हमारे साथ रहेंगे। और मैं इंशाअल्लाह ताला नज़ीर जज साहब को, हमीद भट्टी साहब को, पूरे ग्रुप को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये बात का कहना करता है। इंशाअल्लाह ताला जब हम शहर बुरेवाला में निकलेंगे, लोगों को पता चलेगा कि असल PTI कौन है, क्योंकि हमारा ये फैसला था कि हमने नून लीग के बंदे को किसी सूरत सपोर्ट नहीं करना। हमने आज़ाद करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इनको कामयाब बनाएंगे। मेरी दोबारा तमाम दोस्तों से उम्मीद है कि इनका भरपूर साथ दें, इनके लिए रात दिन नहीं कर दें। ये 20 दिन का इलेक्शन है, खुदा के लिए आप 20 दिन तक जागें और ये आपका जागना इन बात में आप सोना इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए जागेंगे। हम इस शहर के लोगों के लिए इस शहर में मुनाफिकत खत्म करेंगे। करप्शन जो ये लोग कर रहे हैं, जो इनकी मुनाफिकत है, वो मैं किसी दिन अपने लब नहीं खोलता कि मेरे बुजुर्गों ने कहा था कि जिनके साथ में चंद लम्हात गुजरे हों, वो वक्त गुजरा हो, तो उनके खिलाफ बातें नहीं करते। आप लोग तमाम समझते होंगे। आज मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासर हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। दोस्तों, मुसा भट्टी साहब ने बड़ी तफसील के साथ
अपने तमाम जो दोस्त हैं उनकी तरफ से चौधरी जट, ऐशा जट और अब्दुल भट्टी साहब की हिमायत का ऐलान किया है। मेरे पास एक लिस्ट है उन काउंसलर हजरात की जो भोलेवाला में इस वक्त मुंतखब काउंसलर हैं। मैं उनका नाम आपके सामने लेना चाहता हूँ जो मुझे उन्होंने दी है। जनाब भट्टी साहब PTI के काउंसलर हैं, अपोजिशन लीडर हैं। जनाब शकील अशरफ साहब जो PTI के काउंसलर हैं। जनाब हाजी शहबाज साहब राजा भट्टी जो PTI के काउंसलर हैं। जावेद इकबाल, इफ्तिखार मिट्टू भट्टी, शहजाद भट्ट जो यूथ की काउंसिल को मुंतखब हुए थे, उन्होंने भी मुस्तफा भट्टी के साथ पूरे पैनल की हिमायत का ऐलान किया है। इसके साथ साथ लाला आरफ मुगल वो भी यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अमीर एक लेडी काउंसलर हैं, वो मुस्तफा भट्टी साहब के साथ हैं। उनके साथ अभी जो मुझे बताया चौधरी जट साहब ने कि वो आ नहीं सके, मलक तलत नगरियाल साहब और फैज़ अहमद डोगर जो 435 के काउंसलर थे। उसके अलावा जो इन्होंने बिल्कुल इलेक्शन हारे हैं लेकिन बिल्कुल क्लोज फाइट से 10, 15, 20 वोट थे, तो उनमें मोहम्मद खान भोलू भट्टी साहब यहाँ मौजूद हैं और मोहम्मद इकबाल भट्टी साहब मुर्दा टाउन से वार्ड नंबर 23 से वो थोड़े से मार्किंग से वो भी हमारे साथ हैं। इस तरह अब्दुल अजीज साहब जिन्होंने कल अभी आना था, वो चौधरी जट साहब, मियां अब्दुल मजीद साहब, कुछ थोड़ा सा है कि एक दो काउंसलर ऐसे हैं जिन्होंने, क्योंकि ऊपर नीचे का मामला दो काउंसलर के दरमियान है। इसमें जो मैंने 14 के 15 काउंसलर नवाए हैं उनमें 2 हैं ऊपर नीचे वोट में क्लियर करना चाहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ताकि हमारे दोस्त हैं उनकी पोजीशन भी खराब ना हो। वो नीचे और किसी के साथ सपोर्ट करना चाहते हैं, ऊपर लेकर हमारे दोनों में से एक के साथ है। तो अब मैं जनाब आपको शकील अशरफ साहब जो हैं दोस्त जो सवाल करेंगे उनके जवाब देंगे। शकील अशरफ साहब आप ली कहते शरीफ में दोस्तों के साथ अगर कोई दोस्त सवाल करना चाहता है तो वो शकील अशरफ साहब जो हैं वो आपके सवालों का जवाब देंगे। क्वेश्चन रहता होता है जी। हम लोगों ने सारे दोस्तों ने काफ़ी दिन मुशावरत जारी रखी है आपस में, जितने भी हमारे मोहल्ले के काउंसलर्स हैं उन्होंने आपस में मुस्तफा भट्टी साहब की क़यादत में, और जिस तरह की इमरान खान साहब ने इस दफ़ा जब टिकटों की तकसीम शुरू हुई, उन्होंने अपने हर प्रोग्राम में, हर सोशल मीडिया में, हर जगह पे कहा कि इस दफ़ा हम कलेक्टेबल बंदे जो भी जीतने वाले अफराद हैं उनको लाएंगे। तो हम लोगों ने आपस में जब ये टिकटों का मामला हुआ, जब टिकट मिला, तो हमने ये महसूस किया कि टिकट की तकसीम अपनी ज़ाती राय से बालातर होकर अगर सिर्फ PTI के मफाद में सोचा जाए तो ये इंतहाई बेहतरीन फैसला था। हमारे दिल में जज्बात थे कि टिकट हमारे जानने वाले को मिले, उसको मिले, लेकिन नहीं, हमने कहा ये PTI के लिए बेहतरीन फैसला है। लेकिन जिस दिन हमें ये पता चला कि ये इंतहाई जाबराना ये इक़दाम उठाया गया है कि एक ऐसे बंदे को टिकट दे दिया गया है, आप सारे पब्लिकली आप कहीं से भी पूछ लें, हम लोग BD मेंबर हैं, बेसिक डेमोक्रेट्स, हम लोग रूट्स हैं, लोगों में हम जाते हैं, अपनी जितने भी हमारा हल्का है हम उसमें जाते हैं। हम तकरीबन 20 काउंसलर्स हैं, हर काउंसलर का जो है 6000 लोगों पे मुश्तमिल तकरीबन हल्का है, 1,20,000 लोग करते हैं। तो 1,20,000 लोगों के नुमाइंदों को बिल्कुल इग्नोर किया गया, हमें कॉल तक नहीं की गई, हमसे कोई मुशावरत तक नहीं की गई, बस हम पे अपना फैसला जो मुसल्लत कर दिया गया। और हम अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर अपनी वोट को अमानत समझते हुए हमने ये महसूस किया कि इस टाइम इस हल्का में जो इंतहाई
जो मजबूत उम्मीदवार और दयानतदार उम्मीदवार जिसको हम समझते हैं, तो वो हमने नज़ीर जट साहब के पैनल का इंतखाब किया है। हम उनके साथ हैं, दिन रात हम उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। जी, इसके अलावा अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कीजिए, मैं करता हूँ। सर हम तो एक और बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि PTI छोड़ गए, तो मैं अपनी ज़ात की हालत बताता हूँ। पिछले दिनों में जब खान साहब ने ये स्ट्राइक की थी इस्लामाबाद में, तो बड़ी पकड़ दकड़ हुई, मुझे भी पकड़ लिया गया, उसमें मुझे जेल में बंद कर दिया गया। और जब मुझे जेल लेकर गए और जब मैं को खाना भेजा, साथ एक स्टैम्प पेपर वाला भेजा कि आप इसके ऊपर लिख दें, जेल के अंदर, बिहाड़ी जेल के अंदर आप इसके ऊपर लिख दें कि आप इसमें नहीं हैं और हम आपको रिलीज करवाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि कितने दिन के मेरे डिटेंशन ऑर्डर है, DCO ने कितने दिन के लिए मुझे बंद किया है? उन्होंने किया 60 दिन के लिए। मैंने कहा यार अगर 60 साल के लिए भी बंद करें, मैं फिर भी आपको रिटर्न नहीं दूंगा। मैं PTI के साथ हूँ, मैं समझता हूँ मैं आने वाली अगली नस्लों के साथ हूँ, तो मैं इंशाल्लाह इसके लिए भरपूर कोशिश करता रहूँगा PTI के लिए और कर रहा हूँ। और उसके बाद जब मैं फारिग हो गया, आज तक कभी भी साशा खागवानी साहब का किसी का फ़ोन नहीं है कि यार आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, मैंने बिहाड़ी जेल, भावलपुर जेल, पता नहीं कितने दिन कैसे गुजारे। तो खैर चले, उन्होंने अपना फैसला तो बड़ा अच्छा सुनाया और इंशाल्लाह अब जो ज़मीनी हक़ाइक़ है 25 तारीख तक, ये करने की बात नहीं है कि ये सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक नहीं है। मैं अपने हल्का में और मेरे तमाम दोस्त अपने हल्का में इंशाल्लाह 26 को आपको नताइज भी दे देंगे और इंशाल्लाह आपको पता भी चल जाएगा कि ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है और खागवानी साहब का फैसला क्या है। जो और किसी दोस्त को क्वेश्चन है फिर अच्छा सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको PTI के अंदर रहते हुए फाइट करनी चाहिए? सर वो फाइट बनती नहीं। ये खान साहब का मैंने सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया, सबसे पहले खान साहब को जो सबसे पहली बात की आप उठा के देख लें मीडिया पे, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि इस जमाने में जरूरत है बंदे की और जो जीतने वाले बंदे हैं और साथ में दयानतदार बंदे उनकी जरूरत है। तो हमें ये तो बेहतर समझा, हमारी किसी से कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं, हमारे भाई हैं, हम इंतहाई इज्जत करते हैं, जब भी वो हमें मिलते हैं इंतहाई इज्जत करते हैं। मैंने कहा कि बिल्कुल हम अल्लाह ताला को हाज़िर इंतहाई जानकारी के साथ इस बंदे को हमने बेहतर पाया, उसी के साथ है, हमने अपना ज़ाती इख्तिलाफ या ज़ाती राय इसमें शामिल नहीं की। इसके अलावा करें यार क्वेश्चन, आप तो काफ़ी क्वेश्चन नहीं कर रहे यार, मैंने सुना तो बड़े करेंगे आप। हम जानते हैं कि आपका ग्रुप और हमें खुशी है कि आप अच्छे दोस्तों के साथ खड़े हैं, लेकिन जो आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, आपने अंदर जाके इमरान साहब को डायरेक्ट बात की है, क्यों नहीं है? वहाँ तक तो हमारी रसाई नहीं है, हमने खागवानी साहब तक रसाई नहीं है। आप कहते हैं इमरान खान साहब को कैसे रसाई हम कर सकते हैं? हम तो बहुत छोटे लेवल पे आप जी यार, हम मेरी बात सुनिए, हमारा ज़ाती ताल्लुक हो रहा है जी जी। अगर आपकी रसाई नहीं है तो फिर आप PTI क्यों? हम अब सोशल मीडिया के जरिए हमेशा पैगाम पहुंचाते रहेंगे। हम लोगों ने हमेशा कोशिश की है कि जिस लेवल पे भी रह के PTI की मदद की जा सके, वो जो हम कर रहे हैं। लेकिन सर मेरी रसाई नहीं है PTI को होते हुए तब कैसे सही होगी? नहीं, रसाई हमारी शर्त रसाई नहीं है, हमारी शर्त है पाकिस्तान के लिए अच्छे लोगों को अलर्ट करवाना कि ताकि ये पाकिस्तान को जाके सपोर्ट करे, पाकिस्तान के लिए अच्छे काम करे। मेरी कोई हमारी ख्वाहिश नहीं कि हम जाके किसी बड़े से मिलें और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद हम कभी भी नहीं ये चाहेंगे हम फिर जाके इमरान खान से मिलेंगे, जनाब हमने सीट जितवाई। बिल्कुल हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, ना ही हमें कोई ज़ाती वफाद है। हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, आने वाली अगली नस्लों के लिए कर रहे हैं और मैं यकीन करें इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जो नज़ीर साहब का हमारे में कोई एहसान नहीं है कि हम आपके साथ हैं, बल्कि इनका एहसान है कि अपना टाइम दे रहे हैं, अपना बिजनेस छोड़ के दिन रात गलियों में धक्के खा रहे हैं, लोगों के पास बस कर रहे हैं। यकीन करें ये हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे साथ है जी। इसके अलावा थैंक यू वेरी मच। यस करेंगे तो
पार्टी